हेलो बीएड सेकेंड सेमेस्टर और वेलकम यू ऑल। आज जो हम यूनिट ले रहे हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश पेपर की, दैट इज़ फोर्थ यूनिट एंड दैट इज़ मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। एंड ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू नोट्स फॉर लेसन प्लान्स ऑफ इंग्लिश प्रोज पोएट्री एंड ग्रामर। तो लेट्स मूव ऑन। मेथड्स और अप्रोचेस ये मिक्सचर है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसमें कम्युनिकेटिव जो है वो एक मेथड है, लेकिन बाकी जो है अप्रोचेस भी होती हैं। तो चलिए पहले हम ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये टीचर सेंटर्ड है। दिस इज़ टीचर सेंटर्ड। मदर टंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एज विद द नेम यू कैन अंडरस्टैंड that first of all teaching one side mother tongue and then translate into a English language. So that is grammar translation method. Formal training is done by the deductive method. As I said, this is teacher centered. इसमें teacher is the owner of the class. Like teacher की ही बातों को students they listen carefully, they note down, and it is like rote learning. इट इज़ डिडक्टिव मेथड, यानी कि पहले रूल्स समझाए जाते हैं. ऑल द रूल्स आर टॉट फर्स्ट एंड देन द एक्सप्लेनेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर इज बीइंग टॉट, ऑल द रूल्स आर टॉट, एंड देन द ट्रांसलेशन थिंग्स आर टॉट. देन स्पीकिंग इज़ नॉट कंपल्सरी. Now इसके merits क्या है? It is very useful and easy for the teachers. Any teacher can take a book and can teach through grammar translation method. Now what are the demerits? There is no direct bonding between the teacher and the pupil. That pupil are generally they do not ask questions, they do not raise. Why? Because they shy, and the teacher dominates the class, and teacher what they tell the class, they teaches the rules and regulations, they are strict to that. They do not tell the practical part. स्पीकिंग इज़ निगलेक्टेड इसमें है. इसके जो डीमेरिट्स हैं उन्हें देखिए. स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसिव लर्नर्स है, स्पीकिंग निगलेक्टेड है, और एग्जैक्ट ट्रांसलेशन उसकी हर एक सेंटेंस का पॉसिबल नहीं होता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डायरेक्टली टीचिंग इंग्लिश, लाइक डायरेक्टली स्पीकिंग समवन in English, like in the English medium schools with the nursery KG for class 1 children, what do? You speak in throughout English. Why? When you raise that hold your pencil in your hand, so what the children do, they hold their pencils in their hand because they see the pencil in the teacher's hand. तो भले उन्हें नहीं समझ में आया, they don't understand what is they know pencil and hold, what is the meaning of hold, what is the meaning of write. So what they do, they they imitate their teacher. Let's move on to the next. इसके merits and demerits. It develops the skill, it develops the teaching skills, it clears all the vocab, it increases the vocab. Also audio visual aid is used, but the demerit is this is difficult for the teachers. We do not get quality teachers in India to teach through direct method English language. Now Dr. West's new method. Dr. West का जो new method है, that is basically and strongly depending on English reading. It is he said that after reading a book and after reading a complete sentence, writing down the difficult word meanings, and you will understand a language very clearly. Now what are the merits and demerits? It develops definitely with the reading. What you will develop? You will develop a reading skill, and it is useful for the lower grade teachers to follow the class. Now when the class will busy in reading, that is very easy for the primary teachers to manage the class, but it is also very interesting, right? Now what are the demerits? Demerits is that overemphasized reading. Why the child is not writing? Until the child will not write, how the child will learn? Okay, now let's move on. that communication competence. अब communicative approach है ये, इस पे heading नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए. Now communicative approach is like communication competence. You are very well able to write letters, applications, and writing practice. Your assistance is good, your writing is good, your fast writing, and group work is neglected.
इसलिए इसे भी हम निगलेक्ट थोड़ा कर देते हैं। इसे एक्चुअली व्हेन वी टीच इन द रियल क्लासरूम वी मिक्सड अप द अप्रोचेस, वी मिक्स अप द, आप कहेंगे कौन सी अप्रोच, लेट्स मूव ऑन। मैं लास्ट में बताऊंगी कि कौन सी अप्रोचेस आर द बेस्ट। नाउ द डायरेक्ट मेथड, क्या ये थोड़ा सा रिटन पार्ट है, यू कैन मेक नोट्स एंड नोट इट डाउन। डायरेक्ट मतलब नेचुरल मेथड भी होता है। नाउ द लास्ट टू मेथड्स जिसमें कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को, एंड दैट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सो व्हाट इज़ इंडक्टिव मेथड, या इसके कुछ मैक्सिम्स को ये फॉलो करता है। ये जो पॉइंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, you can note down the points in your notebook and then you can proceed with the explanation. Now the first point says this follows the maxim from proceeding from concrete to abstract, यानी कि abstract ideas है की तरफ बढ़ रहा है बच्चा। कॉन्क्रीट उसे हमने बता दिया है कि देर 180 डिग्री इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ द सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। ठीक, तो अब वो उसको हाफ डिवाइड करेगा 180 को में, बहुत सारे उसके अंदर ट्राइंगल्स बना लेगा, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया। अब ये पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ करता है। जैसे कि हमने बच्चे को जल्दी उठाया एंड गॉट अप अर्ली एंड ही सॉ दैट एट 6:10 AM 6:20 AM द सन राइजेज और 5:45 AM द सन राइजेज। तो व्हाट इज़ द जनरल आइडिया व्हाट ही मेक्स इज़ दैट सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट एंड राइजेज जनरली इन द ड्यूरिंग द आवर्स 5:45 और 5:30 और 5:55। तो दिस इज़ अ inductive method of teaching. Now it is direct experiencing. We are not telling the child that you are sticked in a room and we are telling the time आज sunrise इस time हुआ, sunrise उस time हुआ. So we are giving the full fledged the real experience. Now conclusions are based on repetition at many times. So जो है हम जो बच्चे के अंदर जो आइडिया को बिल्कुल कंक्रीट बनाने की कोशिश करते हैं, जो कंक्रीट आइडिया है उसको उसमें और आइडियाज़ अंदर इनवाइब करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो वो कंक्लूजन्स के थ्रू बनाते हैं। दिस इज़ अ वेरी ईजी मैथड टू टीच ऑल्सो। नाउ इसमें चाइल्ड इज़ ऑल्सो सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज़ देयर इन इंडक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश बिकॉज द थिंकिंग इज़ लॉजिकल, इट इज़ suitable for the beginners because we teach through examples and pupil teacher relationship is very good. The every time teacher is not telling the rules, teacher is giving the live examples. नाउ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि ये एक्सपेंसिव होती है, टाइम टेकिंग होती है, देयर नीड्स एक्सपर्ट टीचर्स एंड मेंटर्स, और अनप्रिपेयर्ड टीचर इसे नहीं पढ़ा सकते। हमारे इंडिया में मोस्टली अनप्रिपेयर्ड टीचर्स होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव इज़ अ वेरी ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इफ़ वी टेक सो इट्स टीचेस फर्स्ट द रूल्स एंड देन प्रोसीड विद द नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, all the green apples are sour in taste. A child has developed this idea in his mind. Why? Because the child has eaten 4 apples, 1 apple a day and another after alternate days. So what the child has developed the idea ये develop किया कि उसने जितने एप्पल खाए वो खट्टे थे, and now he has the idea that all the green apples are sour in taste. तो पहले उसे हमने टेस्ट करा दिया, उसके बाद में आइडिया दिया। तो पहले हमने आइडिया भी दे दिया था कि जो बेटा हरे सेब होते हैं वो खट्टे ही होते हैं, तो अब वो जितने सेब खाता है हरे तो वो खट्टे ही उसे लगते हैं। ये क्या मैक्सिम फॉलो करता है फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, दैट वाज ग्रीन एप्पल। तो उसने एप्पल अभी तक जो खाए थे वो मीठे थे, तो ग्रीन एप्पल का उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था कि हाँ नॉर्मल इन टेस्ट, बट व्हाट वी हैव टोल्ड थ्रू द लॉज एंड थ्रू व्हाट वी हैव टॉट दैट ऑल ग्रीन एप्पल्स आर सॉर। सो जब भी कोई भी ग्रीन एप्पल खा रहा है तो सॉर। सो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट उसकी नॉलेज हो गई है। Now it is general to particular and formulas. Students are given formulas and rules and laws, जैसे कि मैथमेटिक्स के कुछ formulas rules पहले बताए जाते हैं and after that the explanation is then told. So what that was method of teaching, deductive method of teaching. Now examples. ये मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट को अब हम पहले बता दें कि 3 एंगल्स का ही जो होता है सम ऑफ 3 एंगल्स इज़ 180 डिग्रीज़। तो अब वो ढूंढेगा 3 एंगल्स 180 डिग्रीज़, तो इससे अच्छा है हम उसे इंडक्टिव मेथड के थ्रू पहले ही बता दें।
इसकी मेरिट्स है कि ये शॉर्ट होता है, टाइम सेविंग होता है, बच्चों को रूल्स बता दिए जाते हैं एंड चिल्ड्रन फॉलो द रूल्स। बट क्या है कि ये प्रॉब्लमेटिक है। वाई? बिकॉज इट इज़ अनसाइकोलॉजिकल मेथड, नो ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी है, ब्लाइंड मेमोराइजेशन है। बट एंड इट इज़ ब्लाइंड मेमोराइजेशन इज़ कॉल्ड रोट लर्निंग। We do not provide rote learning nowadays, बिकॉज रोट लर्निंग के लिए कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, कुछ ही मैथ्स की कुछ इक्वेशंस होती हैं, बस उसके अलावा और रोट लर्निंग हम बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हैं। एजुकेशनली अनसाउंड होता है। स्टूडेंट्स आर द पैसिव लर्नर्स, एज आई सेड दिस इज टीचर ओरिएंटेड, टीचर सेंटर्ड, and reasoning is not clear, like students cannot ask the questions, the teachers are the dominant factor in the classroom. So I hope you like the class, and after this I'm also giving you notes for your lesson plans of teaching of English. So please get the notes and make the proper notes and follow the rules. Thank you.